Welcome for today's discussion of our subject accountancy for class 11. We were passing by the second chapter, basic accounting terms. How much important this chapter, many times I have highlighted to you that if the name of the term we don't know, we cannot do any sums at all of the accountancy subject. At least 35-36 terms we should know for the class standard 11. So in previous 3 episodes I have discussed for the basic accounting terms. So many terms I have discussed also in the first episode, second episode and third episode. As per D.K. Goyal reference book, the number of term I am mentioning here, in different book different student can follow, but these terms will be matched. The number of term may not match, but term must be given in other books also. So our today's discussion for the fourth episode, episode number 4, for the second chapter, basic accounting term. As per D.K. Goyal book, 10 terms I have discussed already. Number 11 term is coming before us, income. What is the meaning of income? Income is equal to revenue minus expenses. What is revenue? What is expense? कोई भी सामान को बेच के जो पैसा आया वो होता है रेवेन्यू, और उस सामान को बनाने में और सेल करने में जितना खर्चा हुआ उसको बोलता है एक्सपेंस। अगर कोई सामान या गुड्स किसको बोलता है? स्टॉक। किसको बोलता है? जो बिजनेस आइटम है, जिस चीज का बिजनेस हम कर रहे हैं, द आइटम विच इज परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड फॉर रीसेलिंग, दैट इज कॉल्ड द गुड्स। सपोज कोई गुड्स को बेच के आया 4 लाख रुपीस, और उस गुड्स को बनाने के लिए और उस गुड्स को सेल करने के लिए एंटायर खर्चा हुआ है 3 लाख। तो 4 lakh minus 3 lakhs, that 1 lakh is the income. So income means revenue minus expenses. Next is coming profit. ये तो कोई एक पर्टिकुलर आइटम का इनकम का बात हुआ। रेवेन्यू जितना आया उससे एक्सपेंस जितना खर्चा हुआ माइनस करके आया इनकम। लेकिन थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर में, थ्रू आउट द ईयर व्हाट एवर टोटल रेवेन्यू इज कमिंग, एंड थ्रू आउट द ईयर व्हाट एवर टोटल एक्सपेंसेस आर मेड, सो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, दैट विल बी कॉल्ड द प्रॉफिट, बिकॉज profit or loss is calculated at the end of the financial year of the company. So at the last date of the year, but that doesn't mean always the 31st December. 31st December is the last date of the calendar year. But in the business, 31st December may be the last date of the year. 31st March also may be the last date of the year. 30th June also may be the last date of the year, but that year is not the calendar year. That year is called the financial year or accounting year. तो financial year ending में कैलकुलेशन किया जाता है कि पूरा साल भर में टोटल रेवेन्यू कितना आया
और टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, तो टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हम लोग को जो एक्सेस रहेगा दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। व्हाट इज गेन? नॉर्मली हम लोग सोचते हैं प्रॉफिट ही तो गेन है, बट अकाउंट्स का भाषा में प्रॉफिट और गेन सेम नहीं है। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन एवरी बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू, बट gain is something different. If any machine or any fixed assets, land, building, furniture, suppose 5 years before a machine was purchased by rupees 50,000, and if we think or if we assume that this machine lifetime is approximately 10 years, इट विल बी एज्यूम कि कितना साल ये मशीन मोटा मोटी एक्टिवेट हो सकता है और चलेगा, उसके बाद ये मशीन से कोई काम होने वाला नहीं है, नया मशीन लगेगा। इट शुड बी एज्यूम्ड बाय द बिजनेसमैन। सो आई हैव एज्यूम्ड सपोज 50,000 रुपीज मशीन इज परचेस्ड एंड द लाइफ टाइम इज एस्टिमेटेड एज द 10 years. So 50,000 will be divided by 10. 5,000 will be coming out. This 5,000 is called the depreciation. That is also different term, but not in this chapter you will get. Not in this chapter, whatever terms will be discussed, 35, 36, entire terms of the accountancy subject you have learned, not that. Various terms are waiting for you. Later on, slowly, chapter wise, whenever we will ahead on a new item or term we will face and we will learn. So depreciation is the decrease in value of the fixed assets, of tangible fixed asset is called the depreciation. So 5,000 rupees is decreased the value of the machine for this example every year. Whenever I have purchased 50,000 value of the machine, after 1 year 5,000 value of the machine is decreased, so machine value is 45,000. After 1 year again 5,000 decreased, 40,000 value. After third year 5,000 value decreased, 35,000 value. So in this way 5,000, 5,000, 5,000, the 10 years the value of rupees 5,000 will be decreased, and after 10 years the entire value of the 50,000 rupees will be decreased, and the value of the machine will be the zero after the 10 years. That means another new machine will be replaced. But suppose after 6 years machine was purchased by the 50,000, and after 6th year मशीन का वैल्यू कितना होगा, हर एक साल 5,000 करके अगर डिप्रिसिएशन हो चुका है तो 6 इयर्स में 30,000 रुपीज उसका वैल्यू घट गया, तो मशीन का वैल्यू कितना रहा, 20,000। लेकिन उस टाइम पे अगर हम चाहें कि इस मशीन से क्वालिटी अभी थोड़ा डाउन हो गया प्रोडक्शन का, हम ये मशीन से और प्रोडक्शन नहीं करना चाह रहे, एक नया मशीन खरीदेंगे और ये मशीन को हम सेकेंड हैंड मशीन को बेच देंगे किसी के पास। अब मशीन का वैल्यू कितना है, 20,000। इफ आई विल सेल बाय 24,000, so 4,000 will be the gain, not profit. डेली एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस करते हुए ये गेन नहीं हो रहा है, ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिक्स्ड एसेट्स को कभी भी सेल करके जो आता है एक्सेस मनी, दैट इज कॉल्ड द गेन। यहां पे लिखा दिया गया, इसलिए देखो प्रॉफिट थ्रू द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। व्हाट एवर लॉस, प्रॉफिट और लॉस सेम चीज है। प्रॉफिट के लिए क्या था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, और लॉस के लिए क्या होगा, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू। मतलब अगर टोटल एक्सपेंस ज्यादा हो जाए
साल के लास्ट में जब कैलकुलेशन होता है, फाइनल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें पता चलता है कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ और टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। अगर टोटल एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द लॉस। नेक्स्ट इज कमिंग परचेस। परचेस किसको बोलेंगे? परचेजेस नाम का इस्तेमाल होगा। परचेज, देखो हम बिजनेस आइटम, जिस चीज का बिजनेस हम कर रहे हैं, व्हाटएवर इज परचेज्ड फॉर द रीसेलिंग दैट इज कॉल्ड द गुड्स। इसके अलावा भी तो बहुत कुछ परचेस करते हैं, मशीन परचेस करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करते हैं, फर्नीचर परचेस करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी परचेस करते हैं। तो परचेज वर्ड इज यूज्ड फॉर द एनी पर्पस व्हाटएवर इज परचेस्ड। बट इन अकाउंटेंसी परचेजेस नाम का जो अकाउंट बनता है, वो परचेजेस नाम का अकाउंट तभी बनेगा जब कोई बिजनेस आइटम को परचेस कर रहे, दैट इज गुड्स को जब परचेस करते हैं, मतलब वो बिजनेस आइटम व्हिच इज परचेस्ड फॉर द रीसेलिंग, दैट इज कॉल्ड द परचेजेस यहां पे अकाउंटेंसी में। तो ये परचेजेस अगर कर रहे हैं तो परचेज दो किस्म का हो सकता है, एक कैश में परचेस कर रहे हैं तो कैश परचेस, और एक उधार में परचेस कर रहे हैं मतलब क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट परचेस। क्रेडिट में जो परचेस करते हैं उसमें से कोई सामान हमको, अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स आ गया तो उसको हम रिटर्न भी कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द परचेज रिटर्न। परचेस किया हुआ सामान रिटर्न कर रहे, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। एंड परचेज रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड एज द रिटर्न आउटवर्ड, उसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेस किसको बोलते हैं? जो बिजनेस आइटम जिसको रीसेल करने के लिए खरीदा जा रहा है उसको बोलता है परचेजेस। अब वो अगर कैश में खरीदा तो कभी रिटर्न नहीं कर पाएंगे, चेंज कर सकते हैं लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न मीन्स पूरा वापस कर देना। पूरा वापस तभी होगा अगर हम क्रेडिट में सामान खरीदे तो परचेज रिटर्न एक वर्ड भी यहाँ पे आपको टर्म मिल रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम सेल करते हैं तो सेल किसको बोलेगा? जब बिजनेस आइटम को सेल कर रहे, दैट इज व्हाटएवर गुड्स वर परचेज फॉर रीसेलिंग, दैट आइटम इज सोल्ड, दैट आइटम इज सेल्ड। दैट मीन्स सेल्स ऑल्सो मे बी मेड बाय कैश ऑन क्रेडिट। अगर कैश में सेल किया तो कैश सेल्स, और रिटर्न आएगा तो भी हम रिटर्न नहीं लेंगे, सामान चेंज करके दे सकते हैं। बट क्रेडिट में अगर सेल किया, वहां से कोई गुड्स अगर सेल रिटर्न करने आया कस्टमर तो हम रिटर्न लेंगे, क्योंकि अभी तक पैसा उसका हमने लिया नहीं। तो सेल्स में फिर दो टाइप आ रहे, कैश सेल, क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल का सामान कभी कभी रिटर्न भी आ सकता है तो उसको बोलता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का नाम होता है और एक नाम रिटर्न इनवर्ड, मतलब रिटर्न होके इन आया, मेरे पास आया, जो सेल हो गया था वो रिटर्न होके आया। तो सेल्स से सेल्स रिटर्न एक नाम आया। ऑल दिस आर द टर्म। नेक्स्ट इज कमिंग स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। देखो स्टॉक किसको बोलता है? स्टॉक गुड्स को बोलता है। जो बिजनेस आइटम है, जिस आइटम को परचेस किया गया है रीसेल करने के लिए, उसी को बोलता है स्टॉक, उसी को बोलता है परचेस। तो फिर वैराइटीज कैसे आ रहे? कंफ्यूजन इज कमिंग बिफोर अस। जो सामान हम परचेस कर रहे हैं रीसेल करने के लिए, वो एसेट है, लेकिन वो करेंट एसेट है। स्टॉक नाम का करेंट एसेट, क्योंकि वो एक साल के अंदर उसको बेच के कैश में कन्वर्ट होगा। करेंट एसेट प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कशन किए थे। जब कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है, फर्नीचर इज कमिंग, फर्नीचर नाम से उस एसेट को बुलाएंगे। जब कोई गुड्स को खरीद रहे हैं फॉर रीसेलिंग, उसको हम स्टॉक नाम का एसेट्स में बुलाएंगे। तो स्टॉक एक नाम आ रहे, टर्म आ रहे। लेकिन जब उसको हम जर्नल करेंगे, जर्नल अभी आप समझेंगे नहीं, नेक्स्ट आएगा जब जर्नल चैप्टर, इन द 9th चैप्टर इन द एज पर डीके गोयल बुक, देन वी विल लर्न द परचेजेस अकाउंट आएगा उसमें।
तो परचेज नाम भी तो एक टर्म हुआ, इसीलिए परचेज टर्म यूज हुआ। गुड्स परचेज करते तब परचेज नाम आता है, और जब गुड्स परचेज करते हैं उसी को स्टॉक नाम भी बोला जाता है। स्टॉक वर्ड इज यूज्ड फॉर द एसेट, करेंट एसेट, और स्टॉक को ही बोलता है स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेड मीन्स बिजनेस करना, परचेज एंड सेल इज कॉल्ड द ट्रेड। तो जो स्टॉक हम परचेज कर रहे हैं सेल करने के लिए, परचेज एंड सेल, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड। तो अगर ये बिजनेस मेरा पिछले साल से चल रहा है, प्रीवियस ईयर का एंडिंग डेट में हमारे पास सपोज 1 लाख रुपीस का गुड्स स्टॉक में रह गया था। सपोज 10 मशीन बेच नहीं पाया था, 10 kilograms of any goods, whatever is my business item, that was left, not I have sold, I could sell at the last date of the accounting year. That was the closing stock. And in the current year, 1st April, that very amount is called the opening stock. So closing stock is at the end of the year, whatever value of the goods are not unsold condition, that is also the next year opening stock. So ये सब टर्म्स आ रहे हैं हम लोग के सामने, ये सब टर्म बाद में यूज होगा, अकाउंट्स कैसे बनाएंगे उसमें यूज होगा। सो स्टॉक का बात जब आ रहे हैं तब उसमें ओपनिंग स्टॉक का भी बात आ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक का भी बात आ रहा है। कभी कभी हम लोग समझते हैं कि ये स्टॉक जो है, इन्वेंटरी भी सेम ही चीज है, बट वो सेम नहीं है, समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट टर्म इज कमिंग, दिस इज माय लास्ट टर्म फॉर दिस एपिसोड, इन्वेंटरी। Inventory and stock is not the same. Actually, stock word is used for stock in trade. That means trade करते जो। Just one thing I have to discuss. In BST you are reading in the chapter 1, first chapter में classification of business. There was a great diagram in the first chapter. Business is classified in 2 parts. One is the industry, another is the commerce. And industry is divided in 3 parts: primary industry, secondary industry, and tertiary industry. And commerce is of 2 parts. One is trade, another is the aids to trade. Trade is also having the different types, and the primary industry different classification is there. I am not going in that discussion, but trade word has come in our discussion. That's why I am trying to make you understand the trade. Industry means anything is produced. कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, वो चाहे गुड्स प्रोड्यूस हो चाहे सर्विस प्रोड्यूस हो। ये टर्शियरी मतलब टर्शियरी इंडस्ट्री का और एक नाम होता है सर्विस इंडस्ट्री, मतलब सर्विस भी प्रोडक्शन होता है। तो इंडस्ट्री पार्ट जो है इसमें प्रोडक्शन होता है गुड्स या सर्विस का, लेकिन कॉमर्स पार्ट जो है इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स और सर्विस को सेल किया जाता है। सो ट्रेड मतलब परचेस किया हुआ सामान को सेल करना, नहीं तो परचेस किया हुआ सर्विस को सेल करना। सो stock word is used for those people, those businessmen who are making the trade, that is the purchase and sell, no production. But inventory word is used for the manufacturing company मतलब मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पास तो 3 तरीके का इन्वेंटरी रहता है। 3 तरीके का, जो सामान रॉ मटेरियल्स खरीद के लाया मार्केट से, अभी तक उसको यूज नहीं किया गया सामान बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स। और कुछ रॉ मटेरियल्स जो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, गुड्स बन रहा है, प्रोडक्शन बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन अभी तक प्रोडक्ट बना नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। दिस वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेमी फिनिश्ड goods and the inventory of finished goods, मतलब जो goods फाइनली बन गया। सपोज
मार्कर पेन इज प्रोड्यूस्ड इन माई कंपनी। तो मार्कर पेन बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल्स लगता है वो रॉ मटेरियल्स खरीद के लाए। उनमें से कुछ रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी यूज करके मार्कर पेन बन चुका है। 10 marker pens already produced, so it is ready to sell. That is called the finished goods. And few raw materials are being used. वो बन रहा है, अभी भी प्रोसेसिंग में है, वो फाइनली मार्कर पेन बना नहीं, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स कंडीशन में है। और कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे है अभी भी उसको काम में लगाया नहीं गया। दैट इज कॉल्ड द इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। सो हियर इन्वेंटरी इज 3 स्टेज: inventory of raw materials, inventory of work in progress, and inventory of finished goods. So till this items I have discussed in this episode number 4. So you go through and very minutely, attentively you go through, very slow but steady, but you make yourself ready for this. Next I am coming in the 5th episode with the new terms of the chapter accountancy. Okay.